Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, for your effective preparation of General Awareness paper, this channel provides you free of cost banking awareness videos from July 2020. There are month-wise playlist that is available on the channel, and I am providing you link of this playlist link in the description box. In November, we could not cover all the videos, and even December videos are pending. So we decided that we will cover all these dates before your main examination. So day before yesterday, I posted one video in that series, and today in this video, I will cover 26th November to 30th of November. So with this video, now our November series will be complete. Then we will make the December series as well as January series also. And I will try to cover this before 23rd December so that in even SO examination and all other 5 main examinations, you can utilize this knowledge and get good marks. So link is available in description box as well as comment box. Along with that, I have given you a link of my banking, financial and economic awareness video playlist link. Watch 10 videos per day to gain knowledge. So God bless you all. So the news is bank credit growth falls to 5.8% in September quarter as compared to corresponding 8.9% last year. So there is a tremendous fall as far as bank credit growth is concerned. Around 4.1% fall is there. And that is due to the low economic activities in the country. But on the other side, deposit growth remains intact. It is 11% as compared to last year, 10.1%. Another news is more than 40 lakh new subscribers enrolled under Atal Pension Yojana. So this is a good news that the number of people those are subscribing to this scheme is rising. That means a good source of funds are available with the government under this fund. Then another important news is SBI Employee Union protest against apprentice vacancies. So they say the bank should take the regular employees instead of apprentice. So they have lodged their complaint with the management. Next news is fiscal deficit reached 9.36 lakh crore at the end of October. It is 120% of projected fiscal deficit for the full financial year. So worrisome figure. The next is core sector output falls by 2.5% in October. Again, a negative for economics. Foreign exchange reserves rises to $575.29 billion as at 20th November 2020. It's a good news that it is at almost all-time high. The next is April-September 2020. FDI inflow is 15% more at 2.2 trillion in the country. So that means more and more foreign money is coming to India. They are putting more money on various sectors to take advantage of Indian economy. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आपके इस चैनल के ऊपर बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, बैंकिंग करंट अफेयर के लिए जुलाई 2020 से वीडियोस उपलब्ध है. इसमें वेरियस प्लेलिस्ट है. जुलाई महीने की अलग, अगस्त की अलग, सितंबर की अलग, अक्टूबर की अलग, नवंबर की अलग. दिसंबर की प्लेलिस्ट बहुत जल्दी हम बना देंगे. उसके बाद जनवरी की भी बना देंगे. नवंबर के बाद से कुछ वीडियोस हमारी नहीं बन पाई थी क्योंकि प्री के एग्जाम्स पे हम फोकस कर रहे थे. अब ये सारी जो डेट्स की करंट अफेयर है हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं. परसों मैंने एक वीडियो डाली, उसमें कुछ डेट्स हमने नवंबर की कवर की.
आज के वीडियो में हम बाकी डेट्स नवंबर की कवर कर रहे हैं, 26 नवंबर से 30 नवंबर। इसके बाद दिसंबर कवर करेंगे, इसके बाद जनवरी को भी अप टू डेट करेंगे, और आपको मैं 23 जनवरी तक हम अप टू डेट आ जाएंगे। 24 जनवरी को हमारा IBPS SO का मेन है। उससे पहले हमारी कोशिश होगी कि हमारा सारा करंट अफेयर, बैंकिंग करंट अफेयर अप टू डेट हो जाए। तो इसको हम करते रहेंगे। आप इन वीडियोस को देखें। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। साथ ही साथ बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक अवेयरनेस की 194 वीडियोस का भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, और कमेंट बॉक्स के अंदर मैं आपको लिंक दे रहा हूं इन वीडियोस का। तो यदि आप जुलाई 2020 से बैंकिंग करंट अफेयर कवर कर लेते हैं, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। बैंकिंग करंट अफेयर पे भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं जनरल अवेयरनेस पेपर में, तो सारे मेंस में ये काम आएंगे आपको। तो पहली न्यूज़ है, बैंक क्रेडिट की जो ग्रोथ है वो गिर के 5.8% रह गई है सितंबर क्वार्टर में, जो पिछले साल 8.9% थी। कई साल पहले ये 13-14% हुआ करते थे। तो बहुत ज़बरदस्त फॉल है, और यही कारण है कि बैंकों के प्रॉफिट पे भी प्रेशर है, क्योंकि क्रेडिट बढ़ ही नहीं रहा। और इस मेन कारण है इकोनॉमी में स्लो डाउन। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं तो क्रेडिट का डिमांड भी नहीं होता है। मगर जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो इंटैक्ट है। 11% की डिपॉजिट ग्रोथ है। लास्ट ईयर ये 10.1% थी। दूसरी न्यूज़ है, 40 लाख से अधिक नए सब्सक्राइबर इनरोल हुए हैं अटल पेंशन योजना में, APY। ये गवर्नमेंट के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वो अपना बोरोइंग कर पाएंगे। जितने ज़्यादा पेंशन योजना में पैसा आएगा उतना ज़्यादा वो बॉन्ड्स में लगता है। इसके अलावा खबर है, SBI एम्प्लॉइज यूनियन ने प्रोटेस्ट किया अप्रेंटिस की वैकेंसीज के खिलाफ। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, रेगुलर एम्प्लॉइज ही भर्ती होनी चाहिए। इसके बाद है फिस्कल डिफिसिट 9.36 लाख करोड़ पे पहुंच गया है अक्टूबर के एंड में। ये बस्टेड फिगर का 120% है। ये चिंता वाला विषय है कि इतना सारा फिस्कल डिफिसिट हो गया। कोर सेक्टर आउटपुट जो है 2.5% से गिरी है। ये भी चिंता का विषय है। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 575.29 बिलियन पे पहुंच गया है 20 नवंबर को, जो कि एक अच्छी खबर है। इसके अलावा अप्रैल सितंबर 2020 में FDI इनफ्लो 15% बढ़ के $2.2 ट्रिलियन के रहे हैं। तो 15% एक्स्ट्रा पैसा आया है FDI का ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड से। तो ये भी एक भारत के लिए अच्छा है कि बहुत पैसा बाहर से देश के अंदर आ रहा है और इन्वेस्ट हो रहा है, जो आने वाले टाइम में इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।